प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप और आपके परिवार कैसे हैं? Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. How are you and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is doing good. उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये समय दिया कि आपके सामने इस प्रकार से मौजूद होकर आपसे बातचीत कर सकूं। I would like to thank God who gave us this opportunity and this beautiful hour moment to be in front of you all like this and to praise and worship and thank Him. याद रखिए, वो दयालु परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता है। Remember, He is a kind God who loves you and us. वे आपके और मेरे संग हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। And He is the God who always lives with us. हर परिस्थिति में आपके और मेरी जरूरतों को सुनने वाला वो परमेश्वर है। And He is the God who in every situation listens to our needs and whatever we lacking for. आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all praise and worship that great God. अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना की ओर जाएं। Let us all close our eyes and we'll go to prayer. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। we praise and thank you. आपने अपनी महिमा में हमें बुलाया, You called us for your glory, अपने कार्यों के लिए हमें बुलाया। called us for your works. जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। Living God, we thank you. आपका वचन ये कहता है, For your word says ना that तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। I'm never gonna leave you nor forsake you. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में। Father God, we pray in the beautiful and sweet प्रभु, name of Jesus. आज के दिन के लिए परमेश्वर, जबकि हमारे मुसलमान भाई बहन प्रभु जो परमेश्वर अपनी ईद की तैयारी और खुशियां मना रहे हैं, Father, in this beautiful day where our brothers and sisters, Muslim brothers and sisters, those who are celebrating their Eid today, और प्रभु कल हमारे हिंदू लोग परमेश्वर पिता, हिंदू भाई बहन पिता परमेश्वर जो राखी का बंधन का प्रोग्राम करेंगे, and our Hindu Muslim and sisters and brothers, those who are going to celebrate their Rakhi Bandhan tomorrow, होने दे परमेश्वर पिता पूरे भारत के अंदर प्रभु शांति, समाधान, प्रेम, एकता होने पाए। Father, let there be your love, kindness, unity, equality and peace in our India. किसी भी प्रकार के लोग परमेश्वर पिता आपस में लड़वाना, आपस में झगड़े करवाना या आपस में परमेश्वर अशांति फैलाने वालों से प्रभु आप बातचीत करें। ये देश प्रेम का प्रतीक है, उस प्रेम में हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर And परमेश्वर। Father God, we pray that let there be no kind of fightings, no kind of dispute, no kind of grumbling in between them and between of us. And Father, people, those who are trying to put on such fire or disputes in midst of them, Father, you talk to them. Father, let every person, every citizen of this country be in equality and with love with one another. Lord, I pray to our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Lord. प्रभु, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मैं दुआ करता हूँ। Lord, you bless to them, the Lord you help to them every time. परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें हर पल आशीषित रखें। Lord, I pray to the Lord you bless to our country, the Lord you help every kind of the things you provide to the every citizen of India, Master. परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, आप हमारे देश को संभालिए, सुरक्षित रखें, आशीषित रखें। प्रभु, जिस चीज की जरूरत है उसको आप पूरा कीजिए। Lord, I pray in the name of Jesus every kind of the problems and troubles and tensions and temptations, Lord, you remove to in our country. परमेश्वर, मैं हर प्रकार की दिक्कत, परीक्षाएं, दिक्कत, समस्या और परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं को दुआ करता हूँ कि हमारे भारत से दूर रहे। The Lord, I pray in the Lord in this time the nations, Master, not only India, all the world, Master, universal you save, Master, by this corona problems, Lord. परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ इस वक्त ना केवल भारत लेकिन परमेश्वर पूरे विश्व, पूरी दुनिया, पूरे संसार को प्रभु आप इस कोरोना महामारी से प्रभु आजाद करें, इस महामारी को दूर कीजिए। The Lord, universally all the prime ministers, chief minister, police, army, doctors, helpers, social worker, everyone, the Lord you bless by your holy hand. परमेश्वर, इस वक्त हम दुआ करते हैं दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, हर एक कार्यकर्ताओं के लिए, हर एक उन आला अधिकारियों के लिए हम दुआ करते हैं, उन सबको आप आशीषित रखें, उन सब के साथ आप बने रहें। Father God, you provide your great mercy all
all the nations, and also your unity also you can send to the Master. Love each other, serve each other, all the countries. परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि आप अपनी एकता, अपने प्रेम, अपनी शांति, समाधान को परमेश्वर इन सभी लोगों के बीच में रखे, और दुआ करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के साथ शांति समाधान के साथ बने रहने पाए। The Lord be healed all the universal in the name of Jesus. परमेश्वर पूरे विश्व की चंगाई के लिए हम दुआ करते हैं कि आप सबको आप चंगाई दीजिए। You bless Master. आप आशीषित कीजिए। Your word says, whatever you ask to my name, I provide you. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम प्राप्त करोगे। The Lord being a servant of God, the Lord we are asking to the blessing this universal Master. परमेश्वर हम आपके सेवक होने के नाते हम दुआ करते हैं पूरे विश्व के आशीषों के लिए। परमेश्वर Thank you Jesus, you listening our prayer. धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। In Jesus name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. आमीन। Thank you dear friends, you are joining us. धन्यवाद प्रिय मित्रों, हम सबके साथ जुड़ने के लिए। Let we shall worship to the Lord, sing some song and lift His name. आइए हम सब कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें और उसके नाम को और ऊंचा उठाएं। He is great God and He is kind God. क्योंकि वह एक महान परमेश्वर और वह एक दयालु परमेश्वर है। Our friend also live with us, but God never live with. क्योंकि हमारे मित्र हमें छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ के जाता। Every time with us. वो हमेशा हर पल हमारे साथ है। इस भजन को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। Let us all sing this song, worship and praise, and sing joy unto thy God. यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम।
भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति का धाम, यीशु नाम मुक्ति का धाम। यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। मिलकर गाएंगे। भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम तमाम मानव जाति के पापों को क्षमा करने वाला नाम है। Jesus Christ's name is the name which forgives each and every human's sins, हर एक मानव जाति से प्रेम करने वाला नाम है वो। and the name which loves every human existing on this earth. यीशु नाम क्षमा का धाम, यीशु नाम क्षमा का धाम। ओ यीशु नाम क्षमा का धाम। यीशु नाम क्षमा का धाम। यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम, जय यीशु नाम। भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। भज पावन श्री यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। ओ यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम, जय यीशु नाम। ओ यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम, जय यीशु नाम। आइए हमारे बीच में मेरा बेटा फिलिप है, वह प्रार्थना करेगा। Come, in midst of us there is my son Philip and he is going to pray for all of us. सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। है स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर और प्रेमी दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर पल में मेरे खुदावन यहोवा, हम सभी को एकत्रित करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तमाम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप आशीषित करें। अपनी महिमा, अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ से तू भरपूर कर प्रभु। परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी आशीष उनके जीवनों में रहने पाए मेरे प्रभु। उनके कार्य सफल होने पाए मेरे खुदावन यहोवा। उनके हृदयों में तू काम कर मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, लोग और जुड़ने पाए परमेश्वर, और आराधना करने पाए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरे कार्य के लिए लोग आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावन यहोवा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना मानता हूँ, आमीन आमीन। आइए दोस्तों, हम लोग एक और गीत गाते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। So I'll sing one more song and praise and worship that God. यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू
यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, 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 यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु दया का बहता सागर, भर लो अपनी खाली गागर। यीशु दया का बहता सागर, भर लो अपनी खाली गागर। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा नाम। हो सुंदर नाम यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु की शक्ति मन की भक्ति, उसमें समाए जो जीवन पाए। यीशु की शक्ति मन की भक्ति, उसमें समाए जो जीवन पाए। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा नाम। सुंदर नाम यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा नाम। सुंदर नाम यीशु नाम प्यारा नाम, प्यारा नाम यीशु नाम प्यारा नाम। सुंदर नाम यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम भज ले तू मन रे, उसका समीरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा उस महान प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और धन्यवाद करते रहे।
keep praising and worshiping that great Jesus उस name. महान यीशु की जय जयकार करें जिसने आपको और मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने कार्यों के लिए रचा और बुलाया है उस परमेश्वर ने। Sing joy unto that great Jesus who called, who created us for His glory to do His work. वो ये कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ता हूँ, ना मैं तुझे त्यागता हूँ। And He says, I never leave you nor I'm going to forsake you. वो ये कहता है हमेशा, हाँ हमेशा मैं तेरे साथ में रहने वाला He प्रभु। says, I'm always, yes, always with you. हमने 2 दिन पहले एक वाक्य सुना था, And we, 2 days before, we learned some words. एक सब्जेक्ट के विषय में कुछ बातें सीख रहे थे कि परमेश्वर का धन। Now we were learning about a subject about the money, the richness of God, wealth of God. और मैंने उसमें से लगभग 5 बातें आपके सामने रखी थी धन की विशेषताओं के विषय में। And I kept literally like 5 points, 5 facts in front of you about the facts of this subject, like money of God. जिसमें नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 का 23, नीति वचन का 23 का 4 और पहला तिमोथेयुस अध्याय 6 का वचन 10, ये सारी बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की थी। In which I presented you in front of you from the book of Proverbs chapter 14:23 and Proverbs chapter 23 verse 4 and Timotheus chapter 6 verse 10. और आज मैं चाहता हूँ कि कुछ और बातें आपके सामने परमेश्वर के कलाम से रखूं। And I want to present some more words from the Bible in front of you all people. वास्तविकता के अंदर परमेश्वर का धन है क्या? In reality, what is the money of God, we can say. आज हम उस धन के विषय में, देने के विषय में सीखेंगे कुछ बातें। Today we're gonna learn about that money, that wealth, about giving. आज का विषय होगा देने के विषय में। Today's subject will be about giving. यदि हम लोग परमेश्वर के कलाम के अंदर नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 के वचन 17वें पद को पढ़ते हैं तो And if we in the Holy Bible, book of Proverbs chapter 19 verse 17, if we read, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है दोस्तों, over here it says, my dear friends, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उद्धार देता है। he who has a pity on the poor lends to the Lord. और वो कहता है, And it says, और वे अपने इस काम का प्रतिफल भी प्राप्त करेगा। and it says, he will pay back what he has given. जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो पूरी बाइबल जो है वो देने के विषय में, क्षमा के विषय में, प्रेम के विषय में बताती है। If we read the entire Bible, it teaches us one thing about giving, about forgiveness, about the love of Christ. यानी कि परमेश्वर हमें इस बात की ओर सीखने के लिए जोर देता है, Which means God, forces us to, like pressurizes us to learn these things. यदि हमारे पास में कुछ है या हम इस कुछ योग्य है तो Like if we have something or if we are able or worthy to give something, हम जरूर उन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए जो इस लायक है। then we should definitely help or lend something to that people. याद रखिएगा, Remember, यानी कि जो व्यक्ति दान देता है या मदद करता है या किसी लाचार पर, गरीब पर अनुग्रह करता है, वो व्यक्ति उस गरीब पर नहीं, वो सृष्टिकर्ता की मदद करता है। always remember, the one who has a pity on that poor person, or the one who gives to that needy one, or he gives to the one who is lacking something, then remember he is not helping to that person. Instead, he is helping to God Himself. यदि मैं अपनी बात कहूँ, And if I talk about myself, यदि मैं किसी व्यक्ति को कुछ देता हूँ तो मैं उससे लेने का भी हक रखता हूँ। now if I talk about myself, if I'm giving something to a particular person, now I have the right to expect back something from him. लेकिन यहाँ परमेश्वर ये कहता है, But here God says, यदि तुमने कंगाल पर मदद की है, कंगाल की मदद की है तो if you had helped a needy person, आपने उसकी नहीं, then you not to him, तुमने मुझे कर्जे पर, इंटरेस्ट पर अपना पैसा या अपनी मदद दी है। but you gave your help as an interest to me. वे परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि जहाँ पर तुम बोते नहीं हो वहां से भी तुम कटनी को काटते हो। For the word of God says, where you do not even sow, from there you're gonna reap it. यदि आपके जीवन में इस प्रकार का मौका मिलता है, आप इस काबिल है, यदि किसी की जरूरत पड़े तो जरूर उस कंगाल पर आप अपनी
दया को दिखाकर परमेश्वर के साथ एकता में आगे बढ़ने की कोशिश And if करें। in your life, if you get this opportunity, or if you get the chance to help or to serve somebody, or to show your pity on a poor person, or to give them, then remember, do that thing if you have it, and you can grow in unity, equality of God. यदि हम लोग नीति वचन की पुस्तक अध्याय 28 का वचन 27वें पद को पढ़ते हैं तो And if you read Proverbs chapter 28 verse 27, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, over here it says, जो निर्धन को दान देता है वो उसे घटी कभी नहीं होती है, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है उस पर परमेश्वर का श्राप आ जाता है। he who gives to the poor will not lack, but he who hides his eyes will have many curses. मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु का कलाम ही हमें सिखाता the है। word of God teaches us. कई बार हम लोग या आप है ऐसा जीवन में ऐसे मौके या ऐसे अवसर मिलते हैं, Now in our life we get many opportunities, many chances. कभी ऐसा मौका परमेश्वर जीवन में देता है कि हम किसी के काबिल बन जाते, किसी की मदद करने के। And God gives us sometimes a chance opportunity that we became worthy to help someone. और ऐसे समय पर शैतान बोलो या घमंड बोलो या अपना बोलो या लालच बोलो हमारे मन में कार्य करता है कि ये पैसा या ये मदद इस कंगाल पर, इस गरीब पर क्यों मैं करूं। And at that opportunity given by God at that time, we can say the Satan, we can say our proudness, or we can say the greediness, or the word me in us, it works that says do not give this money to him, or do not help him, just hide it for yourself. इस बात को कोशिश करना है, सीखने की समझ रखना है। We have to understand this, or need to try to learn this. यदि हम किसी लाचार की मदद कर रहे हैं तो हम उस लाचार की नहीं, हम उस सृष्टिकर्ता को कर्जा दे रहे हैं। Now, if we are helping to a poor person, or if we are giving to him, then remember we are not giving to that poor person, but we are helping, we're giving it to God. मेरे दोस्तों, My dear friends, इसीलिए हम लोग यदि दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 9 पढ़ते हैं तो and if we 9 का read, 6, and if we read 2 Corinthians chapter 9 verse 6, यदि यहाँ पे अध्याय 9 का वचन 6 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखता है, and over here if you read 9 verse 6, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वे थोड़ा काटेगा, थोड़ा ही काटेगा, पर जो बहुत बोता है वे बहुत भी काटेगा। 2 Corinthians chapter 9 verse 6 it says, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. यहाँ पर कहता है वचन 8 में, Here it says in verse 8, परंतु सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बताया बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. यानी कि भले काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, कंगाल पर अनुग्रह करने के लिए, यानी परमेश्वर ने अपने विशेष कार्य के लिए आपको चुना है। Which means God has chosen you for His great, precious, special work. Let it be to help someone, let it be to be pitiful to that poor person, or to give him something. इस दुनिया में परमेश्वर ने किसी के लिए आपको अन्नदाता बनाया है, किसी को मददगार बनाया है, किसी के लिए आप एक मसीहा के रूप में हैं। यदि आप इस काबिल हैं तो जरूर उस परमेश्वर के नियम का पालन करें। Now God has created you on this earth to be helpful, to be worthy, to be as a person to give them, as a helper, as a Messiah for them. And if you are like that, then you have to do it for them. मेरे दोस्तों, My dear friends, इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, that is what the word of God says. जो कंगाल को मदद करता है वो परमेश्वर को कर्जा देता है। The one who helps the poor person actually gives the interest to God. यदि हम परमेश्वर के कलाम में प्रेरितों की किताब अध्याय 20 का वचन 35वें पद को पढ़ते हैं तो And if we read the Holy Bible, Acts chapter 20 verse 35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि
इस रीति से परिश्रम करता हुआ निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह का वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य बात है। Acts chapter 20 verse 35, it says, I have shown you in every way by laboring like this, that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus, that he said, it is more blessed to give than to receive. कितनी महान बात है जो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है, लेने से देना धन्य है। Look how great thing over here Christ is teaching us, that blessed is to give than to receive. इस दुनिया के अंदर हम एक बात सीखते, हो सके तो जितना चाहे लूट लो। In this world we actually learn that if possible you receive as much you can. लोग कोशिश करते और जमा करे और जमा करे और जमा करे और कंजूसी करे, लोग मरते हैं तो मरने, लोग दिक्कत में है तो रहने दो, लेकिन उन्हें देने का या मदद करने का ये स्वभाव नहीं हो पाता है। In this world the people are like that. Some people, those who try to store more and more to receive more and more instead of giving somebody else, they just have this thought to gain more and more, but there are less few people those who actually have the thought to give someone who is not having it. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, That is what the word of God says. क्योंकि लेने से धन्य बात है कि देना। Now, it is more blessed to give than to receive. वास्तविकता तो ये है दोस्तों, But the reality is, my friend, ना तो मैं कुछ लाया हूँ, ना मैं कुछ लेकर जाऊंगा, that we brought nothing in this earth, or not we gonna take nothing with us from this earth. लगभग आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाला सिकंदर भी कुछ साथ नहीं लेकर गया। Now that Alexander, that person also couldn't take back anything with him from this earth. आज के दिनों में भी ऐसे भी लोग हैं जो सोने के महलों में रह रहे हैं, जो नोटों की गड्डियों पे सो रहे हैं। हमें यह भी पता है, आपको भी भली भांति पता है, ना तो वो कुछ लेकर साथ जाएंगे। And we also know these things, that in this earth there are many people, those who are sleeping on the, we can say, in packs of money, like in lots of money papers and everything. They have lots of riches on the earth, and we all know about this. लेकिन परमेश्वर का कलाम ये कहता है, But the word of God says, वो ना तो कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। they brought nothing and they will take back nothing. इसलिए मैं कहता हूँ, That is why I say, सुंदर सुंदर महल बनाए, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है ना, ये सब कुछ छोड़ के जाना, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। माता पिता और भाई बंधु, खेस कुटुंब ये नाते सारे, माता पिता और भाई बंधु,
सब नाते झूठे हैं, ये सब नाते झूठे हैं, ये सब नाते झूठे हैं। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। प्रिय दोस्तों, Dear friends, परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है, the word of God teaches us. याद रखिए, लेने से भला है देना। Now it is blessed more now than to receive, it is better to give. कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, Many times people do not understand. कई बार परमेश्वर के कलाम का लोग विरोध कर जाते हैं। Many times the people are actually against the word of God. लोग इस प्रकार से कहते हैं ना, People say, right? परमेश्वर का कलाम भी इस बात को कहता है, And the word of God also teaches us. देने वालों का कभी जेब खाली नहीं होती और ना लेने वाले का कभी पेट भरता है। The one who gives never lacks, and the one who always want to receive is never satisfied. यदि हम परमेश्वर के कलाम के अंदर, यदि हम लूका रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 14 का वचन 12वें पद को पढ़ते हैं तो And in the Holy Bible, if we read the Gospel of Luke, chapter 14, verse 12, यहाँ प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार से कहते हैं, over here, Lord Jesus Christ says, तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान या पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों और टुड्डों और लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा। Gospel of Luke chapter 14 verse 12, it says, Then he also said to him who invited him, When you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid. Verse 13 says, But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid and at the resurrection of the just. यानी कि Which means, प्रभु का कलाम आज से लगभग 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, उसी समय ये शिक्षा दे बैठे। now the word of God, when Jesus was on this earth, like 2000 years before, and he gave these teachings already. आज चाहे वो फिल्मी दुनिया हो या बिजनेसमैनों की दुनिया हो या धनवानों की दुनिया हो या ऑफिसरों की दुनिया हो, आप देखिएगा कोई भी पार्टी या फंक्शन या कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं तो लोग अपने लेवल वाले को बुलाते हैं। Now in this world, if we really look, or if we see in like filmy world, or if we see like rich, or in this world we can see people when they celebrate something or have a party, they just call the people those who are of their own level. कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, How educated person is he, कितना पैसे वाला or है, how rich is he, कितनी बड़ी नौकरी कर रहा or है, how big a job is he कितने doing, बड़े बंगले में रह रहा है, or in which big palace they are living. क्या मदद कर सकता है। Oh, what can he help us? यानी कि इंसान उन्हें उनके साथ में अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं। Now the human want to make their relationship with the person. आज की दुनिया में इसीलिए तो ये डिफरेंसेस बढ़ने लगे हैं। That is why there are differences in today's world. चाहे हिंदू है तो हिंदू की मदद, मुस्लिम है तो मुस्लिम की मदद, ईसाई है तो ईसाइयों की मदद। Now, if this is Hindu, he'll try to help the Hindu one. If he is Muslim, he'll keep up with only the Muslim brother. And Christian, they'll keep up only with the Christian people. वो देखते हैं कि बिजनेसमैन है, अपना कॉर्पोरेट भाई है, अपना बिल्डर भाई है, अपना इंजीनियर भाई है, अपना कोई मार्केट लेवल का व्यक्ति है, उन्हीं को बुलाओ, उनके साथ में पार्टी करो। And these people are like, if he
is a businessman, or this brother is a corporate working there, or if he is such educated, or if he can help us, like they just try to call all, invite such people, those who are of their level or those who can help them. लेकिन मेरे दोस्तों, My dear friends, प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, the word of God teaches जब तू us, भोज करे when you have a dinner, या कोई आनंद मनाना चाहे, or you want to celebrate या कोई something, त्योहार बनाना or you want to चाहे, celebrate any या festival, घर में कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम करना or चाहे, if you do want to do some big function in your house, उन लोगों को मत भूलना जो गरीब है, Do जो not- जरूरतमंद है, जो मोहताज है, जिन्हें रोटी की कपड़े की जरूरत है। हो सके तो आप उनके साथ में भोजन करिए, हो सके तो उनके साथ भी आनंद मनाएं आप। now when you have a function or celebration in your house, do not forget the poor, the lamed, the maimed, lamed person, those who have nothing with them. Do invite them and give them, for they are needy, and help them. इसलिए अध्याय 14 का वचन 14 लूका की पुस्तक का पहला वर्ड ये कहता है कि तब तू धन्य होगा। And that is why Luke chapter 14 verse 14 verses the first line it says, and you will be blessed. याद रखिएगा, Remember, हमने पहली बार में देखा, we learned the first thing. पहली बात हमने सीखा, First thing we जो learned, कंगाल पर मदद करता है, कंगाल को मदद देता है, वे परमेश्वर को कर्जा देता है। the one who lends it to the poor person actually gives it to God. और दूसरी बात हम देख रहे And हैं, second thing we're learning, यानी कि जो कंगाल को अपने साथ बैठाकर भोजन खिलाता है, जो गरीब को, जो मोहताज को, जो अंधों को, लूलों को, लंगड़ों को, यानी कि जो जिस काबिल नहीं है ऐसे व्यक्ति को बैठाकर उन्हें ईश्वरीय रूप यानी ईश्वरीय प्रेम दिखाता है, वो व्यक्ति धन्य कहलाता है। and the one who invites a poor person, a helpless person to his dinner table and gives him food to eat, serves him, helps him, then remember that person actually helps God and gives to God. यदि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता की पुस्तक में एक बात पढ़ते हैं तो And if we read in the book of Psalms, one thing, यहाँ पर इस प्रकार से एक शब्द कहता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। over here it says one thing I would like to keep in front of you all. भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 41 का वचन 1 में If you read Psalms chapter 41 verse 1, यहाँ पर कहता है, over here it क्या says, ही धन्य है वह जो कंगाल की सूदी रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचा लेगा। blessed is he who considers the poor, the Lord will deliver him in the time of trouble. याद रखिएगा, Remember, यदि आप कंगालों पर मदद करते हैं, if you help the poor, कंगालों को आप उठाते हैं, or if you lift up the poor person, जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जरूरत को पूरी करके उसको अपने बगल में खड़ा करते हैं, तो एक दिन वो परमेश्वर आपको सत्यानाश के गड्ढों से आपको बचा लेगा, आपको सुरक्षा भी देगा। and if you help a poor, a needy person, and if you let him stand beside you, and if you help them, then remember God will protect you, will save you from the pits which are destroying. आज इसीलिए मेरे दोस्तों, That is why today, my dear ये जो friends, परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर की बातें हैं, इन्हें हम ना करने के वजह से कहीं ना कहीं आज इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। now somewhere when we do not accept, or if we do not follow the commandments of God, the words of God, then we humans are becoming enemies of the humans. कहीं ना कहीं ये डिफरेंस है, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई बहुत बड़ा है, कोई बिल्कुल एक एक दाने के लिए मोहताज हुआ है। Now that is why there are differences. Someone is poor, someone is poor, someone is rich, somebody is having everything with him. मैं ये कहना चाहूंगा, आज हम एक चैलेंज ले, एक चुनौती ले, क्या मैं आज से उन गरीबों की मदद करूंगा या नहीं? I would like you to take a challenge today, or to decide in your heart that will I help today onwards to the poor person. गरीबों की मदद करना या कंगालों पर दया करना परमेश्वर को कर्जा देना होता है। Helping the poor or being pitiful to that poor person, remember it is you giving in trust to God. और कंगाल और जरूरतमंदों के साथ भोजन करना अपने आप को धन्य बनाना होता है। And giving to the poor and having dinner with the poor person, it means you are being blessed. और कंगालों पर अनुग्रह करने से
आपको परमेश्वर सत्यानाश के यानी कि गड्ढे यानी कि वो परमेश्वर बीमारी और समस्या और संकटों से बचा लेता है। Now, if you are considering the poor, or if you're being gracious to the poor persons, then remember, God is going to deliver you in the time of troubles. यदि हम लोग चौथी बात की ओर जाएंगे, तीसरी बात की ओर जाएंगे तो And if we go to the third thing to now, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, here it says, रोमियो की लिखी हुई पुस्तक अध्याय 13 का वचन 7 में देखेंगे। Book of Romans chapter 13 verse 7. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, Over here it says, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना है उससे डरिए, उसे डरो, और जिसका आदर करना है उसका आदर करो। Romans chapter 13 verse 7 it says, Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, सबको एक ही लाठी से मत हाको। Now Jesus says, He never said to them, maybe same like everyone, you maybe find out of who is what he want. परमेश्वर ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ एक जैसा रहो, लेकिन जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम ये कहता Here the है, word of God says, यानी कि चाहिए मसीह लोगों को भी। it is needed for Christian peoples also. मैं धन्यवाद करता हूँ इंडियन क्रिश्चियन के लिए। I would like to thank the Indian Christian people. वे हमेशा अपना टैक्स वगैरह देते हैं सरकार को, They always pay their taxes to their government. लेकिन वो कोशिश करते हैं हमेशा बिल्स वगैरह कैरी करने के लिए, ऑडिट वगैरह को देने के लिए। But they always try to carry their bills, their audit with them. मैं निवेदन करता हूँ और भी जो मसीह लोग इस काम को नहीं करते हैं, And I would like to request to all the other people those do not do this work, जरूर आप करें। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि महसूल देना या कर देना, यानी कि टैक्स पे करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारा लो भी कहता है और हमारा परमेश्वर का कलाम भी कहता है। Now paying to the taxes to whom taxes are due, it is the law, and also our law also teaches us the same thing. यहाँ पर कितना अच्छे से साफ साफ लिखता है, Look how nicely and clearly it is written over here. वो कहता है कि जिसका कर है उसको कर को रोको मत, उस कर को दे दो। It says that render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, do not stop it. आज के दिन में देखा जाए, And if you see in today's world, बहुत से लोग कोशिश करते हैं many people try it. कैसे बच लिया जाए। How can we be saved? याद रखिए, टैक्स देना भी सबसे बड़ा गुनाह है। संसार की दृष्टि में है ही है, सरकार की दृष्टि में, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में भी ये गुनाह है। Now, not paying your tax is also a sin, also in the world and also in the sight of the government. यहाँ परमेश्वर का कलाम भी ये कहता है हमें, Also here the word of God teaches us, ये परमेश्वर की दृष्टि में भी गुनाह हो जाएगा। it could also be a sin in sight of God. यदि हम लोग मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 17 के वचन 25 से 27 तक पढ़ते हैं तो And if we read book of Matthew chapter 17 from 25, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, 17 के वचन 25 में, book of Matthew chapter 17 verse 25, if we read, इस प्रकार से कहता, उसने मुझसे कहा, हाँ देता है। जब वे घर में आया तब उसने उससे पूछने लगा, पहले ही यानी कि पहले ही उससे कहा, है सिमोन तू क्या चाहता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? उसने अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए हैं, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बासी डाल, और जो मछली पहले मिले यानी कि पहले निकले उसके मुंह को खोलना, और तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर और मेरा और अपना दोनों का हिस्सा सरकार को दे देना। book of Matthew chapter 17 verse 25, you read, and it says, he said yes, and when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, what do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes? From their sons or from strangers?
Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Then the sons are free. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take a fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and for you." यानी कि Which means प्रभु यीशु मसीहा जब तक इस धरती पर इंसानों के बीच में वो इंसानी रूप में जिंदा थे, उन दिनों में उसने उतना ही बखूबी ईश्वर की बात को भी माना और उतना ही हिसाब से उन दिन के गवर्नमेंट की बात को भी उसने सुना। now, which means that when Jesus, while he was on this earth, he obeyed the commandments, the world rules of his father, and as well as the rules, the customs of the kings over there, the governors. मेरे दोस्तों, My dear friends, हो सकता है प्रॉफिट हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, या हो सकता है बहुत बड़े गुरु हो, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो रूल्स बना हुआ है, जो लॉ हमारा बना हुआ है, उसका पालन हम जरूर करें। now you could be prophet, you could be any other big person, big famed person, but whatever you are, whatever you could be, but it is important and must for us to obey the rules of our government and of our leaders given to us. ये सारे टैक्सेस के वजह से ही पैसा सरकार के पास जाता है और वो देश को बेहतर बनाने में कामयाब में पैसा आता है वो। Now all these taxes are used in the government, I mean for the government, which is used itself for our countries to develop our countries to work for it. क्योंकि आपका पैसा देश के कार्यों में लगता है, इस प्रकार से आप देशभक्त भी कहलाते हैं। For your money, your tax is also used for the country, for the development of country, and through this you are also called a citizen of your country. इसलिए प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में हमसे कहना That चाहता is है, why Jesus is trying to tell us about giving. हम कोशिश करें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। Let us all try that the word of God to work in our lives. इसलिए याद रखिएगा, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 17 में कहता है, That is why remember 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। and if someone is in Christ, then he is a new creation. Everything is in past and every past is ended. जब हम नए हो चुके हैं तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कंगालों को मदद भी करें, हम दबे कुछ लोग की सहायता भी करें, हम गरीबों के साथ में एक अच्छा रिश्ता भी निभाएं, जिससे हम धन्य हो जाएं और हम अपने संकटों से बचाए जाएं और हम टैक्स देकर परमेश्वर की प्लस देश के कार्यों में हम आगे बढ़े। When we are a new creation in Christ, then this is our responsibility, our job to help the poor, to help the oppressed persons, to help the poor people, and to follow the rules given by our government and to do everything. जो कोई लोग भी इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, People those who are watching this हम program, केवल are परमेश्वर का requested वचन to you. सुनने वाले ना बने, Now we only not to listen the word of God. हम वचन को सुनकर उसका पालन करने वाले सच्चे और अच्छे मसीह बने। Now we should also listen the word of God and to become the doers of the word. प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। God bless you and your families. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let us all pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं we praise and thank you इस दिन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए for प्रभु। this beautiful day and for your presence. जितने भी प्रभु मेरे भाई बहन परमेश्वर पिता तेरे पवित्र बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे परमेश्वर, Now all the people in Christ or your servants or all the other people those are watching this program, तेरी आशीष तेरी कृपा प्रभु हर एक के जीवन में बनी may रहे। your blessings and your kindness be in everybody's life. हम सब के साथ आप बने रहिए। You be with all of us. जाने अनजाने में हमने यदि तेरे वचन का विरोध किया है तो प्रभु आप हमें क्षमा करें और आज से परमेश्वर हम निर्णय लेते हैं तेरी उपस्थिति में हम प्रभु और भक्ति के जीवन में आगे बढ़ेंगे। And God, if we had done any mistake or gone against your law by knowing or without knowing, forgive us and Father help us to grow more in your presence. आपकी कृपा और आपकी आशीष को बनाए रखें प्रभु। Keep your blessings and your kindness upon us. चाहे न्यूजीलैंड में रहने
वाले, फिजी में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, दुबई में रहने वाले, प्रभु परमेश्वर फिलीपींस में रहने वाले, सिंगापुर में, मलेशिया में, प्रभु जहाँ जहाँ से भी प्रभु आत्मिक आराधना के मेम्बरान से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों के जीवन में तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। And Father, let it be New Zealand, let it be to India, let it be any other country wherever Atmik Aradhana's members, Atmik Aradhana's workers are working. Join you, bless them, you be with them. पूरे पृथ्वी के प्रभु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर्स, पुलिस, सोशल वर्कर, धार्मिक, परमेश्वर तमाम लोगों पर तेरी कृपा हो, ताकि ये पूरा विश्व परमेश्वर एक और बार फिर से शांति, समाधान, प्रेम, एकता में आगे बढ़ सके। And Father, we pray for entire nations, Prime Minister, President, Chief Ministers, workers, leaders, doctor, police, every other person, those are working, citizen, and everyone, you be with them, let your blessings and kindness be with them. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते Holy हैं। name of Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. थैंक यू धन्यवाद। दोस्तों, धन्यवाद आप इस प्रोग्राम को देखने के लिए। Thank you dear friends for watching this और program. आप यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, या आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, तो ज़रूर आप मैसेंजर में या व्हाट्सएप में हमें कांटेक्ट करें। And you keep joining with us, keep with us, and we pray, we request, if you have any prayer request, then do write it on our Facebook, Messenger, Viber, or any social media platform. We will definitely pray for you. प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। सभी को जय मसीह की। God bless you and your families. Praise the Lord, everyone.